Good morning, all of you. Now we will start our next chapter of history, that is nationalism in India. We already studied the nationalism in Europe. Now we will start the next chapter, nationalism in India. Okay, nationalism in India, like in that chapter, you already knew about all the events of Indian history. So, like you will feel good to learn all these things, or like all the movements, all the agitations related to Indian history. Okay, so now we will start the nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. तो जब यूरोप में नेशनलिज्म हुआ तो लोगों को ये पता चला कि हम क्या हैं, हमारी बिलोंगिंग्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, कैसे नेशन स्टेट बना. तो इसी तरह जब उसको देखकर धीरे धीरे फिर यही कॉन्शियसनेस कहाँ पर आई, इंडिया में भी आई. न्यू सिम्बॉल्स बने, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज़, ये सब डेवलप हुआ विद द नेशनलिज्म. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerged in India? तो अब इंडिया में कैसे ये सब स्टार्ट हुआ? In India, and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. मतलब anti-colonial मतलब colonialization means British rule. तो जो British rule को था हमें उसको हटाना था. तो इस तरह उनको हटाने के साथ, उनको हटाने के मूवमेंट के साथ इंडिया में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म में क्या था, हमें इतना प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था, इंडियंस को बहुत नेग्लेक्ट किया जा रहा था. तो लोगों में धीरे धीरे क्या आने लगा, ये बॉन्डिंग होने लगी कि हम सब एक हैं. क्योंकि हम सबको नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो हमें अपने राइट्स के लिए कुछ ना कुछ फ्रीडम स्ट्रगल करना ही पड़ेगा. And their experience were varied and their notions of freedom were not always the same. ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी क्लासेस थी, उन सब में इफेक्ट अलग अलग हुआ है. उनको पता है कि सबका जो टारगेट है फ्रीडम का वो डिफरेंट है, बट ईदर सबको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए. द कांग्रेस एंड महात्मा गांधी tried to forge these groups together within one movement. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, कि कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने ये ट्राई किया कि हम सब एक मूवमेंट के साथ बंध कर काम करें, बट स्टिल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा आते ही हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा फेस करनी ही पड़ती है, बट स्टिल ये सब काम हुआ. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from 1920s and the study of non-cooperation and civil disobedience movement. तो हम इन तीनों की बात करेंगे. हम बात करेंगे 1920 के बारे में, non-cooperation और civil obedience movements के बारे में. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participants in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. तो इस तरह से किस तरह से ये लोगों में ये डेवलप हुआ, ये लोगों ने सोचा हमें नेशनलिज्म किस तरह से होना है. तो इस तरह से ये सारी उनके बारे में बताया गया है. सो नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स, तो इन सब के बारे में है. In the year after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? First of all, the war created a new economic and political situation. First World War खत्म हुआ था 1919 में. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. ठीक है, तो जब वॉर हुआ था
तो वॉर का जो भार आया था, जो बर्डन आया था, ह्यूज इंक्रीज हो गया था डिफेंस एक्सपेंडिचर में, तो उसको कैसे हम कवर करेंगे। तो वॉर लोन लेना पड़ा था, तो उसको हमने टैक्स बढ़ा दिया कॉलोनियल ने, हमने नहीं, कॉलोनियल ने, ब्रिटिशर्स ने, और कस्टम ड्यूटी रेज्ड हो गई थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना वॉर एक्सपेंडिचर को कवर किया था। थ्रू द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लग गई थी, परेशानी स्टार्ट हो गई थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। और forced recruitment मतलब ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि हर विलेज से लोगों को पार्टिसिपेट करना ही होगा वॉर में, तो ज़बरदस्ती उनको वॉर में सोल्जर्स के रूप में ज़बरदस्ती उनको डाला गया था। Then in 1918, 19 and 1920, 21 crops failed in many parts of India। साथ ही साथ क्रॉप फेलियर स्टार्ट हो गया था, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड, और फूड शॉर्टेज बढ़ने लग गया क्योंकि क्रॉप फेलियर स्टार्ट हुआ। दिस वॉज accompanied by an influenza एपिडेमिक, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वॉर एक्सपेंडिचर की वजह से ब्रिटिशर्स ने हमको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर लिया, फिर क्रॉप का प्रॉब्लम होने लग गया तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, साथ ही साथ एपिडेमिक आ गया था, इन्फ्लुएंजा आ गया था। तो इन सब ने मिलकर और पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम में 1921 में आई थी। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर। तो लोगों ने सोचा कि चलो वॉर के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। नए स्ट्रगल, नया प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, तो इसलिए नए नए लीडर्स मतलब नए लीडर बने, और इस तरह हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया। The idea of satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1950. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। तो उन्होंने वहाँ किया रेसिस्ट भाई कास्ट के जो रेजाइम था, जो आगे वाला जो रेजाइम था उनके अगेंस्ट उन्होंने, मतलब वही कि वहाँ पर भी वो वाइट कलर और ब्लैक कलर और बहुत होता है, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर मूवमेंट किया था और एजिटेशन किया था, उन्होंने आंदोलन किए थे, और इस तरह उन्होंने उसको नाम दिया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagraha could win the battle through non-violence। तो क्या उनका सोच था कि अगर सत्याग्रह का आपका आइडिया है और आप पावर ऑफ ट्रुथ के साथ काम करते हैं, तो आप इनजस्टिस के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉन वायलेंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर। तो इस तरह आप उनको नॉन वायलेंस के थ्रू अपना जो ओपोनेंट होता है, जो अपना अगेंस्ट में होता है, हम उसको कॉन्शियस कर सकते हैं। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। तो मतलब वही है कि आदमी अपने ऑपरेसर, वही जो अपना ओपोनेंट होता है, उसके ट्रुथ से हमें उसको जीतना है, ना कि हमें ज़बरदस्ती करके, ना ही हमें फोर्सफुली लोगों को ट्रुथ को एक्सेप्ट, वायलेंस के थ्रू हमें ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करवाना है। लोग अपने मन से ट्रुथ को एक्सेप्ट करें। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph। और अगर ऐसा हुआ तो सच्चाई की ही क्या होगी, जीत होगी। महात्मा गांधी believed that this dharma of non-violence could unite all Indians। और महात्मा गांधी ने हमेशा ही नॉन वायलेंस की बात की है। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized a satyagraha movement in various places। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system।
कि जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट में बिहार के जितने भी पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको एक साथ किया और बोला कि हम चंपारण जाएंगे और हम इस तरह प्लांटेशन के अगेंस्ट में स्ट्रगल करेंगे। देन इन 1970 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा could not pay revenue and were demanding that revenue collection be relaxed in. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize the Satyagraha movement against cotton mill workers. तो इस तरह से देखो सब जगह का बताया गया है। सबसे पहले 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार के पीजेंट्स को इकट्ठा किया, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पीजेंट्स को इकट्ठा किया और फिर 1918 में ही उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स को भी इकट्ठा किया। तो इस तरह उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया, सबको अपने साथ मिलाया। देन द रॉलेट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act के अगेंस्ट में कि हमें अब नेशन वाइड सत्याग्रह करना है। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। ठीक है, ऑपोजिशन के बावजूद भी इस लॉ को अप्रूव कर दिया गया। It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years। इस लॉ का मेन रीज़न क्या था कि जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है आप उसको इजीली गवर्नमेंट उसको दबा देगी और किसी भी प्रिजनर्स को, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, उनको विदाउट ट्रायल, बिना किसी सुनवाई के उनको 2 साल की जेल दे दी जाएगी। तो ये रॉलेट एक्ट के प्रोविजंस थे। महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust law which would start with a battle on 6th April। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railways workshop and shops closed down. बहुत बड़ी बड़ी rallies निकली, alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। तो इस तरह से सबको कलेक्ट किया गया, बट धीरे धीरे लोकल लीडर्स ने सब कहाँ इकट्ठे हुए, अमृतसर में इकट्ठे हुए, बट महात्मा गांधी को दिल्ली से बाहर निकलने की परमिशन, बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग, दिल्ली में एंटर होने की परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा हुआ था। वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स क्लोज हो गई, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई थी और इस तरह से तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि हम इस मूवमेंट को किसी न किसी तरह करके दबा देंगे। ऑन अप्रैल 10 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, और जो प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, उस पर पुलिस ने फायर कर दिया। अटैक्स ऑन एंड प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सब जगह उन्होंने क्या किया, अटैक कर लिया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, और मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमांड किसने ले ली थी, जनरल डायर ने कमांड ले ली थी। ऑन अप्रैल 13 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसके बारे में आप लोगों को पता है, सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू ऑपरेसिव measures, others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit point, opened fire in crowd, killing hundreds। तो इस तरह ओपन फायर कर दी गई थी। His object, as he declared later, was to produce a moral effect, कि मतलब यही कि लोगों को समझाना। To create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe, कि मतलब वो क्या पैदा करना चाह रहा था, डर पैदा करना चाह रहा था। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground। ठीक है, मतलब उनको पुलिस ने क्या आप नाक रगड़ो अपनी, इस तरह से काम करवाना है। क्राउल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, और जितने भी साहिब निकलेंगे आपको उनको क्या करना है, सलाम करना है। तो ये बहुत बड़ा काम किया था, ये सारे मार्शल लॉज लगा दिए गए थे। People were flogged and village around Gujranwala in
पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, और वहाँ पर बॉम्ब गिरा दिए गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और जब महात्मा गांधी ने देखा कि लोग वायलेंट होते जा रहे हैं, नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाना पॉसिबल नहीं है, तो महात्मा गांधी ने धीरे धीरे ये मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, कॉल्ड ऑफ, बंद कर दिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. अभी भी ये कहाँ तक limited था? Cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together. तो उनको पता था कि कास्टिज्म से कभी भी हम जीत नहीं सकते, तो ज़रूरी है कि हम हिंदूज़ और मुस्लिम्स को साथ में लेकर चले। अगर हमें बहुत बड़ा कोई मूवमेंट चलाना है तो दोनों का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशूज़, और उन्होंने खिलाफत इशू फिर यहाँ उठाया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, that is the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1990. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब डिफ़ीट ऑफ ऑटोमन टर्की का जब डिफ़ीट हो गया था, तो उस टाइम भी इसी तरह एक ट्रीटी हुई थी, और उसमें जो खलीफा था, स्पिरिचुअल जिसको बोला जाता है इस्लामिक वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल हेड होता है खलीफा, तो इस तरह उनके साथ मिलकर तो ट्रीटी की गई थी। उसी तरह इन खलीफास को पावर्स को बचाए रखने के लिए फिर बॉम्बे में भी धीरे धीरे मुस्लिम्स ने मिलकर स्टार्ट किया था, खिलाफत कमेटी बनाई थी बॉम्बे में। A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1990. A young generation of Muslims leaders like the brothers of Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslims leaders together. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-corporation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. तो इस तरह से तो महात्मा गांधी ने बोला था कि जब तक हम मुस्लिम्स और हिंदूज़ को साथ में नहीं लाएंगे, हम बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं चला सकते। तो इस तरह मुस्लिम्स और हिंदू को साथ में लाया गया, और खिलाफत के साथ और स्वराज, इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और इस तरह से सबको साथ में लाया गया। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ ऑल up to this topic. So just now read again this topic, and then if there is any doubt, then you just ask me. Okay, so now read up to that topic. So we will start our next topic in our next class. Okay, thank you so much. Have a nice day all of you.